Hello students, this is Riyanshi Jain and welcome to Study with Riyanshi. Today we will discuss the questions based on complementary angles. Now what are complementary angles? जब दो angles का sum 90 degree होता है, then these are complementary angles. These are the questions from NCERT given in the box of think, discuss and write. So our first question is, can two acute angles be complement to each other? कोई भी दो अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हम. अब अक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक 30 डिग्री and 60 degree. Their sum is 90 degree. So these are complementary to each other, and 30 is complement of 60 and vice versa. Other examples we can take is 20 degree and its complement will be 70 degree, which form the sum equal to 90 degree. So we can say acute angles can be complementary to each other. So its answer is yes. Now our next question is, can two obtuse angles be complement to each other? Obtuse angles are greater than 90 degree. अब 90 से ग्रेटर अगर मैं 91 डिग्री भी लेते हैं तो दूसरा एंगल हम वापस 91 डिग्री ले रहे हैं. स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज जो है हम वो ले रहे हैं, तो इनका सम हो जाएगा 182 डिग्री. यानी कि जब आपने स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूज एंगल भी लिया और उनको ऐड किया तो दे आर adding up to 182 degree and और हमें सम चाहिए होता है 90 डिग्री, तो ये तो खुद ही 90 डिग्री से बड़ा है. सो इट्स आंसर विल बी नो. Obtuse angles cannot be complement to each other. Next is, can two right angles be complement to each other? Right angle is 90 degree. 90 degree, even one right angle itself is 90 degree. So when we add two right angles, so its sum will be 180 degree and we want sum to be 90 degree. So two right angles cannot be complement to each other. So its answer will also be no. Now next are the questions given in the box of try these. Question is, which pairs of the following are complementary? इनमें से जिनका भी सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे. जैसे हियर इट इज 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री whose sum is 90 degree. Here 75 degree plus 25 degree. Now their sum is 100 degree, so they are not complement. It is these are complementary angles. In third one, it is 48 degree plus 52 degree. 48 degree plus 52 degree again is forming 100 degree. So this is also not a complementary angle. This is 35 degree plus 55 degree whose sum add up to 90 degree. So they are complementary angles. Now next question from try these is, what is the measure of the complement of each of the following angles? So first is 45 डिग्री. यानी कि हमें इन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. जब दो एंगल्स को हम ऐड करते हैं दे ऐड अप टू फॉर्म 90 डिग्री, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें 90 से माइनस करना पड़ेगा. मान लीजिए इसका जो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इसका 45 का कॉम्प्लीमेंट को हम x मान लेते हैं, तो 45 प्लस एक्स एड अप टू 90 डिग्री. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, बट हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 45 विच इज 45 डिग्री. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 इज 45 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री विल बी 90 डिग्री minus 65 degree which is 25 degree. Complement of 41 degree will be 90 degree minus 41 degree which is equals to 49. So complement of 41 degree is 49 degree. Complement of 54 degree will be 90 degree minus 54 degree which is equals to 36 degree.
तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमेशा हमें 90 में से वो एंगल माइनस करना होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री. फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने लिए जिनको माइनस करने पर 12 आंसर आना चाहिए, बट हमें एंगल्स की वैल्यू नहीं दी गई है. सो वी विल सपोज लेट द एंगल बी x. लेट द एंगल बी x. देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, 90 में से एंगल माइनस कर लेते हैं. तो हमने जब एंगल को x माना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, 90 माइनस x. ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया. तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंस इन्होंने 12 दे रखा है. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 90 माइनस x इज 12 डिग्री. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 12 डिग्री आ रहा है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. x माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के जितने भी साइंस होते हैं नंबर्स के बाहर वाले वो चेंज हो जाते हैं. जैसे इधर 90 डिग्री जो है, 90 के आगे कुछ भी साइन नहीं, यानी ये पॉजिटिव है, सो इट विल बिकम नेगेटिव. एंड x के आगे नेगेटिव है, इट विल बिकम पॉजिटिव x. ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे हम. सेम टर्म्स को सेम साइड पे रखेंगे, x प्लस x इस साइड रहेंगे और 12 डिग्री कॉपी हो गया. इधर ये जो 90 था ये हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे और इसका साइन इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाने के कारण चेंज हो जाएगा. सो माइनस 90 विल चेंज टू प्लस 90. सो x प्लस x. हमेशा हम वेरिएबल्स से ऐड करेंगे, कभी भी सिंपल नंबर्स और वेरिएबल्स को ऐड नहीं करेंगे, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल ऐड नहीं होंगे. तो हमने x साथ में रख लिए. x प्लस x, इनका साइन इसलिए चेंज नहीं हुआ बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वल्स टू साइन. x प्लस x इज 2x एंड 12 प्लस 90 इज 102. देन 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है. जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इक्वल्स टू के से दूसरी तरफ जाते हैं जब ऑपरेशंस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं. इफ प्लस हो रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा होगा तो इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे प्लस हो जाएगा. बट यहाँ पर x एंड 2 आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, तो 2 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा. एंड इसका आंसर है आपका 51 डिग्री. तो फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स हमें बोला गया था, तो एंगल की वैल्यू आपके 51 डिग्री आई है. तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट था यानी 90 माइनस x, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 39 डिग्री. तो हमारे पास दोनों एंगल्स आ जाते हैं, एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो एंगल इज 51 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 39 डिग्री. क्वेश्चन में कहा था दोनों का डिफरेंस 12 आना चाहिए. हम चेक भी कर लेते हैं. हमारा एंगल है 51 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट है 39 डिग्री. इफ हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर भी 12 ही आ रहा है. दैट मीन्स वी हैव डन इट करेक्टली. So these are few questions based on complementary angles. In next video we will discuss the questions based on supplementary angles. Thank you.